کیا میری آواز اور اسکرین کلیئر ہے؟ جی اسکرین بھی شیئر ہے، آواز بھی آ رہی ہے، آپ کیری کر دیں۔ تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ایوری ون. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ کا دل سے شکریہ کہ آج آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے 40 منٹ نکال کے اس کلاس میں آئے ہیں. سب سے پہلے گائز آپ نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے. یہاں سے ایک اسکرین شاٹ لے کے اپنے اپنے اپلائن کو سینڈ کر دیں. جس بھی انسان نے آپ کو آج کی اس میٹنگ میں انوائٹ کیا ہے اس کو آپ یہاں سے ایک اسکرین شاٹ نکال کے سینڈ کر دیں اور ساتھ میں یہ میسج بھی ٹائپ کر دیں آئی ایم ان ویبینار. صرف 1 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس. یہاں سے آپ ایک اسکرین شاٹ لے کے اپنے اپنے اپلائن کو سینڈ کر دیں. جس بھی انسان نے آپ کو اس میٹنگ کا لنک دیا ہے آپ اس انسان کو یہاں سے ایک اسکرین شاٹ سینڈ کر دیں. صرف 30 سیکنڈ ہے آپ لوگوں کے پاس. اپنی اٹینڈنس مارک کروائیں. یہاں سے ایک اسکرین شاٹ لے کے اپنے اپنے اپلائن کو سینڈ کریں. تو سب سے پہلے گائز آپ نے اس میٹنگ میں سیریس بیٹھنا ہوگا. یہاں پہ آپ نے اپنے کریئر کو سیریس لینا ہوگا کیونکہ یہاں پر جو بھی باتیں ہوں گی آپ کے فیوچر اور آپ کے پریزنٹ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوں گی. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے موبائل کے نوٹیفیکیشنس کو ٹرن آف کر دینا ہے تاکہ ڈیورنگ کلاس کوئی بھی نوٹیفیکیشن آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. فی الحال 30 منٹ کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے کہیں ایسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پر کوئی بھی انسان آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے کیونکہ آپ کو اس کلاس کا پورا فائدہ مل سکے. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جس کلاس میں آپ بیٹھے ہیں یہاں پر کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہیں. آپ کا ایک لرننگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. آپ یہاں پر سیکھنے آئے ہوئے ہو. یہاں پر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں پر پیشنس صبر رکھنی ہے. جتنا آپ یہاں پر صبر کریں گے اتنا ہی آپ کو یہاں پر بینیفٹ ملنے والا ہے. اینڈ ویری نیکسٹ آپ کا یہاں پر بزنس مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. اگر آپ یہ سوچ لے کر آئیں کہ یہاں پر آپ کو کوئی جاب آفر کی جائے گی تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہاں پر آپ کو ایک پراپر بزنس کرنا سکھایا جائے گا. اینڈ لاسٹ میں اگر اس سیشن سے آپ کو جو کچھ بھی سیکھنے کو ملے آپ نے اس کا فیڈ بیک لازمی دینا ہے. جس بھی انسان نے آپ کو آج کی میٹنگ کا لنک دیا ہے پوری کلاس کے بعد آپ نے اس انسان کو آج کی میٹنگ کے 2 اہم پوائنٹس لازمی بتانے ہیں کہ آج کی میٹنگ سے آپ نے کیا سیکھا ہے. تو جس کلاس میں آپ موجود ہیں یہ کمپلیٹ ایک بیچ ٹریننگ سیریز ہوتی ہے جس میں آپ کو کمپلیٹلی ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے گھر بیٹھ کے سوشل میڈیا اور اسمارٹ فون کا یوز کرتے ہوئے پر منتھ یہاں سے 50,000 سے 1 لاکھ روپے کیسے کما سکتے ہیں. تو یہ پراپر 3 دن کی کلاسز ہوتی ہیں جس میں آپ کو کمپلیٹلی ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. آج آپ کا پہلا دن ہے جہاں پر آپ کو کرنٹ سچویشن اینڈ فائنینشیل ایجوکیشن کے بارے میں انفارمیشن دی جائے گی. تو آج کا کلاس بہت ہی انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ ہونے والا ہے. آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا پورا فوکس اس کلاس پر ہونا چاہیے اینڈ آپ کے کان اس میری آواز پر ہونے چاہیے. اباؤٹ می میں کون ہوں. مائی سیلف میر ستار. میں سندھ کے شہر گھوٹکی سے بلونگ کرتا ہوں. کرنٹ پروفیشن میرا اسٹڈی کے ساتھ ساتھ میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتا ہوں. اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ کریئر کی اگر اسٹارٹ کی بات کی جائے تو میں نے 29 جون 2022 سے اس جرنی کا اسٹارٹ کیا تھا. ٹوٹل ریونیو میرا اس انڈسٹری سے 28 لاکھ روپے کا ہے جو میں نے 15 ماہ میں جنریٹ کیا. یہاں پر منتھلی انکم میری 2 لاکھ روپے سے زیادہ ہوتی ہے. سیلف میڈ ینگ ملینئر ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میں نے اپنی ٹیم میں 100 سے زیادہ لوگوں کو سیلف میڈ ینگ ملینر بھی بنایا ہے اس انڈسٹری میں. تو لیٹس موو ٹو دا ٹاپک وائی منی از سو امپورٹنٹ. تو سب سے پہلی جو چیز ہے پیسہ ہماری زندگی کے لیے امپورٹنٹ کیوں ہے. کیا کسی کو یہ لگتا ہے کہ پیسہ ہماری زندگی کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے؟ آئی تھنک بالکل امپورٹنٹ ہے. ارلی مارننگ جب ہم اٹھتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے فوڈ ناشتہ بریک فاسٹ بھی ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہماری صحت خراب ہوتی ہے تو ہمیں اپنی ہیلتھ کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہم میڈیسنس لیتے ہیں. اگر ہم کہیں پر رہائش کرتے ہیں اگر آپ ایک کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ نے رینٹ دینی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم کسی دوسری سٹی یا کنٹری ٹریول کر رہے ہیں تو اس ٹریول کے لیے بھی ہمیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم ایجوکیشن کر رہے ہیں یا ہمارے والدین کے پیسے پر ہم ایجوکیشن کر رہے ہیں یا ہمارے بچے ایجوکیشن کر رہے ہیں تو اس ایجوکیشن کے لیے بھی ہمیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. ڈیلی لائف کے جتنے بلز ہوتے ہیں ڈیلی لائف پر ہماری جتنی بھی گھر میں یوز ہوتی ہیں چیزیں جو بھی چیزیں ہم ڈیلی لائف میں ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان سب کو دیکھا جائے تو ہر ایک چیز میں پیسہ انوالو ہوتا ہے. ہر ایک چیز میں ہمیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. آج جو آپ اس موبائل کو یوز کر رہے ہو نا جس پیکج کے ساتھ اس میٹنگ میں آئے ہو تو یہ بھی پیسے سے آئی ہوئی ہے. مطلب اس کے لیے بھی پیسہ امپورٹنٹ تھا. تو اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پیسہ ہماری زندگی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وائی منی.
آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کے پاس آزادی ہے، آپ کے پاس فریڈم ہے، آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو آپ کے پاس آرام ہے، آپ کے پاس کمفرٹ ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کے پاس سیکیورٹی ہے، آپ کی لائف میں فلفلمنٹ ہے، آپ کے پاس ایک اچھی ہیلتھ ہے، آپ کے پاس کامیابی ہے۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ انسان کامیاب ہوتا ہے، تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پیسے والے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، تبھی ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اپنی زندگی میں انجوائے کر سکتے ہیں، فن کر سکتے ہیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ گھوم پھر سکتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ گھوم پھر سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں اپنے لائف کو، ایڈونچرس کر سکتے ہیں، کریٹیوٹی کر سکتے ہیں، اپنے ٹائم کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ بٹ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی میں، اس زندگی میں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، بہت ہی پاورفل چیز ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے اس دنیا میں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ آج کل گھر میں بھی اس کی عزت ہو رہی ہوتی ہے جس کی جیب میں نا تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں نا تو آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے کہ گھر میں اگر آپ کماتے نہیں، آپ پیسے نہیں لے کے آتے تو وہاں پر آپ کی کیا رسپیکٹ ہوتی ہے۔ تو سوسائٹی میں بھی آپ کی تب ایک رسپیکٹ بنتی ہے جب آپ تھوڑے بہت پیسے کمانے کے لائق بنتے ہو یا تھوڑے بہت کہیں سے پیسے کما رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کماتے نا تو آپ کے فیملی والے بھی آپ کو ٹونٹنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھو فلاں کا بیٹا اتنا کما رہا ہے، تم ابھی تک گھر میں ویلے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو اس بات کو سمجھ رہے ہو کہ پیسے ہماری زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ڈریم لائف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گولز کو، ڈریمز کو سیریس لیتے ہیں، اپنے لیے کام کرتے ہیں، بہت کچھ ایسی ایسی پلاننگز کرتے ہیں اپنی لائف کی، انہوں نے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے لائف میں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے نا پراپر ایک مائنڈ بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی لائف کو انجوائے کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو انجوائے کرنا ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کا نا یہ بھی خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو پراؤڈ فیل کروائیں۔ حالانکہ میرا بھی یہی خواب ہے کہ میں اپنی فیملی کے لیے بہت کچھ کروں، جن سے میں ان کے لیے ان کی لائف کی آسانیاں کر سکوں، اتنے میں پیسے کما سکوں کہ میں ان کو حج عمرہ بھی کروا سکوں۔ میں اپنے پیسے سے ان کے نا بہت سارے خواب پورا کرنا چاہتا ہوں، اپنی ایک امیج بنانا چاہتا ہوں اپنی فیملی کی نظر میں۔ ہم ینگسٹرز کا بہت سارے خواب ہوتے ہیں کہ ہمیں لگژریس لائف اسٹائل بھی چاہیے، ہمارے پاس ایک ڈریم ہاؤس ہونا چاہیے۔ تو وہ ڈریم ہاؤس بھی ہمیں لگتا ہے نا پیسے سے ہی آتا ہے، ایسے کچھ بھی نہیں آتا۔ تو پیسہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے خواب ہے نا اس میٹنگ میں آپ آئیں تو آپ کے بھی کچھ خواب ہوں گے، آپ کے بھی کچھ ایسے چھوٹے موٹے گولز ضرور ہوں گے جن کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، جن کے لیے آپ بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تو کرنا تو ہم بہت کچھ چاہتے ہیں، ہم نے ان سب گولز کو اچیو کرنا ہے، ہم نے پیرنٹس کو پراؤڈ فیل بھی کروانا ہے، ہم نے پیسہ بہت کمانا ہے جس سے ہم اپنی اس زندگی کو اچھی طرح سے گزار سکیں۔ یہاں پر ہم اچھی لائف انجوائے کرنا آئے، نہ کہ ہم یہاں پر زندگی گزارنے آئے۔ تو اگر ہم نے زندگی کو انجوائے کرنا ہے تو ہمیں ایک فائنینشیل فریڈم لائف چاہیے جہاں پر پیسے کے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلمس نہ ہو، تبھی ہم اپنی لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہے تو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم زندگی کا مزہ نہیں لے رہے بالکل بھی۔ اینڈ دیکھیں زندگی انسان کو صرف ایک بار ہی ملتی ہے، تو اس کو کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، یہ سب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے فیوچر کے لیے کیا کیا ڈیسائیڈ کرتے ہو، آپ اپنے فیوچر کے لیے کیا کیا پلاننگز کرتے ہو، اس پیسے کو کمانے کے لیے آپ کیا کیا پلاننگز کرتے ہو۔ تو یہاں پر آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں بھی سکھائی جائیں گی جو شاید آپ نے کہیں نہیں سیکھی، شاید آپ نے کہیں نہیں سنی ہوگی۔ بیسیکلی ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہمارے پاس اگر اچھی بلی ایجوکیشن ہوگی، ہمارے پاس ڈگریاں ہوں گی تو ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ہمارے والدین کا بھی یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہمارے بیٹے نے اچھا خاصا پڑھائی کر لی، اچھی خاصی ڈگری لے لی تو اس کے بعد کیا ہے، اس کی لائف سیٹ ہے۔ بٹ اگر دیکھا جائے ایک نارمل اسٹوڈنٹ تو یہاں پر کیا کرتا ہے، 15 سے 17 سال اپنے انویسٹ کر دیتا ہے زندگی سے، بچپن سے لے کے جوانی تک، صرف ایک ڈگری کمپلیٹ کرنے میں۔ اور اس 15 سے 17 سال کے ٹائم پیریڈ میں وہ ایوریج اگر 2 لاکھ پر سال بھی اگر دیکھا جائے تو وہ 28 سے 36 لاکھ روپے اپنے والدین کی انویسٹمنٹ کروا دیتا ہے جسٹ ایک ڈگری لینے کے لیے۔ اور ڈگری لینے کے اندر اندر اس کے کیا ڈریمز ہوتے ہیں، کیا گولز ہوتے ہیں کہ میں گریجویشن کمپلیٹ کر لوں گا، اس کے بعد مجھے ایک اچھی سیلری والی جاب مل جائے گی جس کے بعد میری لائف سیٹ ہوگی۔ تو آئی تھنک ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو ایک ڈگری کر رہے ہو، آپ نے ایجوکیشن لے لی ہے تو آپ کی لائف سیٹ ہے، بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھا جائے اگر پاکستان میں ہر سال یہاں پر 4,80,000 جو اسٹوڈنٹ سے گریجویٹ کرتا ہے پاکستان کی یونیورسٹیز، اور جن میں سے 1,72,000 لوگوں کو نوکریاں مل جاتی ہیں، اور ان 4,80,000 لوگوں میں سے 3,08,000 لوگ ہر سال بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کس کمپٹیشن میں بھاگ رہے ہیں۔ ہر سال پاکستان یہاں پر 4,80,000 اسٹوڈنٹس کو گریجویٹ کر دیتا ہے اور ان میں سے 1,72,000 لوگوں کو نوکری ملتی ہے۔
3,08,000 लोग बेरोजगार रह जाते हैं। मतलब आधे से भी कम लोगों को नौकरी मिलती है और आधे से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अब देखें, आप इस बात से ना अंदाजा लगा लें कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पर एमबीबीएस की डिग्री कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी आप एमबीबीएस की डिग्री करें, तो आपके पूरे शहर में कितने लोग सेम वही डिग्री कर रहे हैं जो आप कर रहे हो। अंदाजा लगा लेते हैं, 1000 लोग करते होंगे सेम वही डिग्री जो आप कर रहे हो। और पूरी स्टेट में कितने लोग कर रहे होंगे, अंदाजा लगा लेते हैं कि उसी स्टेट में जहाँ पर आप रहते हो 10,000 लोग करते होंगे। अब ये अंदाजा लगा लो कि पूरी पाकिस्तान में ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जो सेम वही डिग्री कर रहे हैं जो आप कर रहे हो। जो आप एमबीबीएस कर रहे हो सेम वही एमबीबीएस वही लोग कर रहे हैं। तो इस बात से आप ये चीज समझ रहे हो कि आप एक ऐसे कंपटीशन में भाग रहे हो जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा हैं और सक्सेस के चांसेस बहुत कम है। और हमें अगर अपनी लाइफ में सरवाइव होना है, पैसे कमाने हैं, तो हमने अपने डायरेक्शंस को तब्दील करना होगा। इज एजुकेशन इज इक्वल टू सक्सेस? आई थिंक बिल्कुल भी नहीं। पैसे एजुकेशन से सिर्फ कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी के लिए एक प्रॉपर माइंड सेट होना चाहिए, पैसे कमाने के लिए भी एक प्रॉपर माइंड सेट होना चाहिए। एजुकेशन ही सब कुछ नहीं होती। एजुकेशन आपके लिए उतनी ज़रूरी है जिससे आपको अपने विजन्स, आपके वेज क्लियर नज़र आने चाहिए, जिसमें आपको अपने अच्छे और अपने बुरे का फ़र्क समझ आना चाहिए। आपको अपना कल नज़र आना चाहिए कि मैं ये जो डिग्री कर रहा हूँ मैं इसको यूटिलाइज़ कहाँ करूँगा। तो हमने क्या करना है, हमने अपने इन पुराने पैटर्न से बाहर निकलना है। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4,80,000 लोग जो हैं ग्रेजुएट तो हो रहे हैं हर साल, लेकिन हमारे पास सोर्सेज इतने कम है कि सिर्फ उनमें से 1,72,000 लोगों को नौकरी मिलती है और 3,08,000 लोग बेरोजगार रह जाते हैं। तो जो लोग बेरोजगार रह जाते हैं उनका क्या, आधे से ज्यादा लोग तो हमारे यहाँ बेरोजगार हो जाते हैं। हो सकता है अगर आप एक स्टूडेंट है, आप भी डिग्री कर रहे हैं, कल इन 3,08,000 लोगों में आप भी आ जाएं, तो क्या गारंटी आपके पास, क्या यही एजुकेशन आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है? क्या लगता है आपको? कोई सवाल, इस सवाल का आपके पास जवाब है कि क्या आपका फ्यूचर आपकी एजुकेशन से सिक्योर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे कंपटीशन में भाग रहे हैं जहां पर बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। आप ऐसे डायरेक्शन में भाग रहे हैं जहां पर बहुत सारे लोग भाग रहे हैं और सक्सेस के चांसेस बहुत कम हैं। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास रिश्वत है, तो आपकी डिग्री मैटर ही नहीं करती, आपको कहीं पर भी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि अब पैसे का ही आजकल जमाना चल रहा है। पाकिस्तान में मेरिट का सिस्टम ही नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप रिश्वत दे सकते हो, आप कोई अच्छी खासी सिफारिश करवा सकते हो किसी एमएनए एमपीए से, तो आपकी यहाँ पर नौकरी पक्की है, बेशक आपको कुछ आता हो या ना आता हो। अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर आप देखें कि पाकिस्तान में ऐसे पीएचडी स्कॉलर्स भी बैठे हुए हैं जिनको अभी तक जॉब ही नहीं मिली। तो क्या ख्याल है आपका? एजुकेशन तो इन लोगों ने भी वही की है जो आपने की है, लेकिन यहाँ पर ये लोग पीएचडी स्कॉलर्स हैं फिर भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। क्या इन्होंने एजुकेशन नहीं की? क्या इन्होंने टाइम स्पेंड नहीं किया? क्या इन्होंने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए? बिल्कुल किए। बट बात की जाए यहाँ पर क्या है कि जॉबलेस पीपल्स, हमारी पॉपुलेशन तो और भी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है, बट उसके साथ साथ हमारे यहाँ बेरोजगार भी बहुत इंक्रीज होती जा रही है। हर साल 50,000 से ज्यादा जो इंजीनियर्स हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं, उनको कोई नौकरी नहीं मिलती। बाद में वो लोग क्या करना है स्टार्ट कर जाते हैं, या तो कहीं होटल पर वो वेटर बन जाते हैं, या फिर कहीं पेट्रोल पंप पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर कहीं पर मजदूरी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब करनी ही मजदूरी है तो उन्होंने 15 से 17 साल इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी, 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? मतलब कि हमारा जो टाइम स्पेंड हुआ, हमने जो डिग्री की वो वेस्टेड है एक किस्म की। तो हमारी जो डिग्री हमने इतना टाइम लेकर की है वो हमारा फ्यूचर भी सिक्योर नहीं कर पा रही। बेशक यहाँ पर पीएचडी स्कॉलर्स भी बेरोजगार बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। बात की जाए पाकिस्तान में, एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, जो वेल स्किल्ड हैं, उनके पास अच्छा खासा टैलेंट भी है। बट बात की जाए हमारे पास सोर्सेज बहुत कम है। हमारे यहाँ पर बेरोजगारी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 1999 से लेकर 2022 तक देखा जाए तो 0.4 से लेकर 16% तक बेरोजगारी बढ़ चुकी है हमारे पास, और ये दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारी बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये देखें क्या हो रहा है, हमारे यहाँ 4,80,000 लोग ग्रेजुएट तो हो रहे हैं, लेकिन उनमें से कितने लोगों को जॉब मिल रही है? सिर्फ 1,72,000 लोगों को। एंड बाकी कितने सारे लोग जो लोग थे वो बेरोजगार रह गए। तो हमारे पास टैलेंट, एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, बट हमारे पास ऐसे सिस्टम्स नहीं है जो हमें ग्रो कर सकें। इन्फ्लेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान के हालात आप सब लोगों के सामने, कि महंगाई इतनी है कि लोग धरने दे रहे हैं। यहाँ पर लोग
रास्ते पर आटा छीन रहे हैं एक दूसरे से, तो ये कुछ ऐसी हकीकतें हैं जो शायद आप नहीं जानते। ये ऐसी एजुकेशन है जो आपको कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं दिखाई जाती। ये हमारे रियल हकीकतें, ये हमारे पाकिस्तान में सब हो रहा है। पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप एक अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते, अब अगर आप एक मिडिल क्लास बॉय हैं या एक मिडिल क्लास बंदे हैं, तो आपको इस बात का ना इल्म हो रहा होगा कि आप अपने घर को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं इतनी महंगाई के टाइम में। यहाँ पर आपने रेंट देने होते हैं, यहाँ पर आपने बिल्स देने होते हैं, यहाँ पर आपने घर के लिए फूड भी लेना होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत महंगाई हो चुकी है। पेट्रोल के रेट का तो आपको पता ही होगा कि दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। गैस दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, बिजली दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। क्या उन लोगों की सैलरीज़ बढ़ी हैं जो लोग काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ महंगाई बहुत ग्रोथ पकड़ती जा रही है एंड हमारे यहाँ ऐसे सिस्टम्स नहीं है जहाँ से हमारे पैसे को भी ग्रोथ पकड़ी जा सके। बात की जाए हमारी करंट सिचुएशंस की, तो कंटिन्यूअस हमारा जो इकोनॉमी है वो डाउन आता गया है। इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे इतने हैं कि 1960 में अगर डॉलर की बात की जाए तो सिर्फ ₹3 1 डॉलर था, लेकिन अभी अगर बात की जाए तो 1 डॉलर तकरीबन आज के रेट में ₹320 का है। तो इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कंटिन्यूअस हम क्या हैं, हम नीचे आते जा रहे हैं, हम डाउन होते जा रहे हैं, हम कंटिन्यूअस डाउनफॉल में ही जा रहे हैं। हमने कभी ऊपर की तरफ ग्रोथ नहीं पकड़ी। बात की जाए यहाँ पर हमारे ऊपर कितना कर्ज़ा है, तो आईएमएफ का इतना कर्ज़ा है कि पाकिस्तान का हर एक शहरी, बच्चे से लेकर बड़े तक 2.5 लाख रुपए के कर्ज़े में है, इतना हमारे ऊपर कर्ज़ा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे ग्रोथ सिस्टम्स नहीं है जिनको हम बिल्ड कर सकें। हमारे यंगस्टर्स की भी अगर बात की जाए, तो जो हमारा फ्यूचर है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, जिनको यहाँ पर अभी बिज़नेसेस बनाने चाहिए, जिनको अपॉर्च्युनिटीज़ बनाना चाहिए, वो अपने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, अपने टाइम को कहीं पर सही से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, कोई स्किल नहीं सीख रहे, क्योंकि आजकल की हमारी जो यूथ है उनको यही लगता है कि असल कामयाबी ये है कि आपको कोई एक लड़की मिल जाए जिसके साथ आप प्यार करो, उसके साथ आप शादी करो एंड आपकी लाइफ सेट ब्ला ब्ला ब्ला, ये आपकी कामयाबी है। बट आई थिंक ये कामयाबी हमारी नहीं है, ये हमारा फ्यूचर नहीं है। हम पाकिस्तान का फ्यूचर है। हमें कुछ प्लानिंग्स करनी होगी, हमने कुछ इस तरह से डिसाइड करने होंगे, हमने कुछ इस तरह से स्टेप्स लेने होंगे कि हम ऐसे काम करें जिससे हमारे फ्यूचर भी सिक्योर हो, हमारी फैमिली भी सिक्योर हो एंड हम ऐसे काम करें, ऐसे सोर्सेज क्रिएट करें कि जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो, कि वो भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें। पाकिस्तान में हम ऐसे-ऐसे सोर्सेज क्रिएट करें कि हम पाकिस्तान को बिल्ड करें। बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, बट अगर वो उन लोगों के पास पाकिस्तान छोड़ने के पैसे हैं, तो उस पैसे से वो पाकिस्तान में कारोबार भी कर सकते थे। जिस धरती में उन लोगों ने यहाँ पर घूमे फिरे हैं, छोटे से लेकर बड़े हुए हैं, तो अगर अपने उन पैसों का जिनसे वो वीज़ा लगवाकर बाहर कमाने जा रहे थे, क्या वो ही पैसा यहाँ पर लगाकर कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते थे, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट नहीं कर सकते थे? बात होती है सारी माइंडसेट की। हम पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, हम यूथ हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमने उस चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते। हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, हम अपनी एबिलिटीज़ को कभी भी नहीं पहचानते। पाकिस्तान फॉर सेल। मिडिल ईस्ट ने ना कुछ दिन पहले ये न्यूज़ दी थी कि पाकिस्तान इस हद तक गिर चुका है कि पाकिस्तान अपने एयरपोर्ट्स और सीपोर्ट्स भी सेल करा जो यूएई कतर ने ले लिए थे। तो ये बात बिल्कुल क्लियरली साफ ज़ाहिर है कि हमारे पास हमारे ऊपर कर्ज़ा इतना है कि हमारे यहाँ ग्रोथ सिस्टम्स है ही नहीं जिनसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके, और उसके साथ-साथ हमारे हालात इतने ख़राब हो रहे हैं कि हमने दिन-ब-दिन कर्ज़ा ही लेते जा रहे हैं बाहर से, जिसकी वजह से हम इस कंडीशंस में मौजूद हैं कि हमारे एयरपोर्ट्स और सीपोर्ट्स को भी 50% जो शेयर थे हमने वो सेल करने पड़ रहे हैं। तो इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हम किस कंडीशंस में मौजूद हैं। हम काफ़ी डाउन हो चुके हैं, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। आपने अभी देखा होगा रिसेंटली इंडिया ने अपना एक मिशन से भेजा, रॉकेट लॉन्च किया, चाँद पर भेजा, चंद्रयान उन्होंने भेजा। बट उन्होंने जितना खर्चा किया उस चंद्रयान मिशन पर, उससे जो है ना आधा हमारा कर्ज़ा है पाकिस्तान के ऊपर। तो इस बात को आप ये समझ रहे हैं कि हम बहुत पीछे हैं, हम क्यों पीछे हैं? हमारे ठीक है, गवर्नमेंट्स तो ऐसी हैं, पॉलिटिक्स तो ऐसी हैं, लेकिन हम जो यूथ हैं, हम जो यंगस्टर्स हैं, वो भी हम अच्छे डिसीजंस नहीं करते। वो भी हम अपने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं करते। बात की जाए यहाँ पर पाकिस्तान में जो लोग हमें रोज़गार देते थे, वही लोग यहाँ पर शट डाउन करते जा रहे हैं। एफएफसी ने अपने प्लांट्स को यहाँ पर शट डाउन करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उनको यहाँ पर नुकसान हो।
ठीक है, किसी भी कंपनी को थोड़ा बहुत नुकसान होगा ना, वो अपने सारे सिस्टम को यहाँ पर बंद करेगी, क्योंकि वो समझेगी मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मेरा नुकसान भी नहीं हो रहा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इस बात से ये अंदाजा लगा लें कि यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी वर्कर्स काम करते थे, कितने लोग बेरोजगार हो गए होंगे। टोयोटा पाकिस्तान ने भी यहाँ पर अपना प्लांट शट डाउन करने का फैसला कर लिया है। तो इन्होंने भी अगर प्लांट यहाँ पर शट डाउन कर दिया, तो यहाँ पर ये सोचें कितने सारे और लोग भी थे जो यहाँ से बेरोजगार हो गए। तो मतलब ऑलरेडी हमारे पास बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, लेकिन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे हालात बहुत ही खराब हैं। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि पाकिस्तान के तकरीबन 310 लोग जो इटली जा रहे थे, एक बेहतरीन कल और बेहतरीन रोजगार की तलाश में, शिप ओवरलोड होने की वजह से सारी शिप उनकी समंदर में डूब गई, जिसमें तकरीबन 200 पाकिस्तानी लोग शहीद हो गए। वो क्यों हो गए? क्योंकि वो भी अपने बेहतरीन कल के लिए बाहर जा रहे थे। पाकिस्तान में उनको वो सोर्सेज नहीं मिले, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले जिनसे वो आगे सरवाइव कर सकते थे, अपनी फैमिली का पेट पाल सकते थे। मजबूरी में कोई प्रदेश जाता है, ऐसे किसी को प्रदेश जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके पास ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिनको वो अवेल नहीं करते, वो देखते नहीं है। बट अपने माइंड का यूज करके वो बाहर जा रहे थे एक बेहतरीन रोजगार के तलाश में, लेकिन उन्होंने उनको कुदरत ने कहीं और ही पहुंचा दिया। ग्लोबल थ्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप में से बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज से तो अवेयर होंगे ही कि एआई का जो यूज है वो कितना हो रहा है। दुनिया और टेक्नोलॉजी देखा जाए तो बहुत आगे चली चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है, एंड हम अभी भी अपने पुराने पैटर्न्स में मौजूद हैं कि हमें अभी भी यही लगता है कि हम एमबीबीएस की डिग्री कर लेंगे, हम इंजीनियरिंग की डिग्री कर लेंगे, उसके बाद हमारी लाइफ सेट है, हमारे पास पैसे खुद ब खुद आएंगे। खुद ब खुद कोई भी चीज नहीं आती, खुद ब खुद कोई पैसा आपके पास नहीं आता। आपने जो डिग्री ली है आप उसको यूटिलाइज करेंगे, कहीं पर आप यूज करेंगे, तभी आपको कोई छोटी मोटी इनकम रिसीव होती है। बट देखा जाए तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आने वाले टाइम में डिग्रीज मैटर ही नहीं करती। आप जो एजुकेशन कर रहे हो, क्या लगता है कि ये फ्यूचर में आपका साथ देने वाली है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखें टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। अब देखें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि पहले हमारी बैंकिंग सिस्टम्स में क्या होता था कि एक ना कैशियर होता था जो आपको आपकी कैश करके दे देता था इनकम। बट अब क्या हो रहा है वहां पर कि अब वहां पर एटीएम मशीन आ गई है इंसान की जगह पर, जहां पर आप एक कार्ड डालते हो और अपनी अमाउंट बाहर निकाल लेते हो, आप विड्रॉवल ले लेते हो। तो इस बात से आप ना ये सोच लें कि सिर्फ एक एटीएम मशीन के आने से किसकी नौकरी चली गई? जो एक बंदा आपको कैश देता था। मतलब एक मशीन की आने की वजह से एक बंदा बेरोजगार हो गया। तो इस चीज को आप समझ रहे हैं कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है। हमने क्या करना है? हमने भी अपने टाइम के साथ साथ अपने आप को अपडेट करना है। हमने अपने आप को अपडेट करना है एंड टेक्नोलॉजीज को समझना है। बात की जाए एआई की, तो एआई यहाँ पर हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। दुनिया की 85% जो पॉपुलेशन है वो बेरोजगार होने जा रही है। वो कैसे होगी? देखें, अब मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ कि एआई हम सब लोगों से बहुत एडवांस है, हम सब लोगों से बहुत फास्ट है, हम सब लोगों से बहुत इंटेलिजेंट है। इंसानों से कई ज्यादा जो गुना उसके पास इंफॉर्मेशन है ना, वो बहुत ज्यादा है हमसे, हमारे मुकाबले में। तो हम उसके किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकते, वो इंसानों से हर काम में परफेक्ट है। बात की जाए यहाँ पर एआई की, तो एआई बहुत कुछ कर सकता है। अब देखें, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जो मेडिकल फील्ड फील्ड के स्टूडेंट्स होंगे वो इस बात को अच्छे से समझेंगे कि अगर एक एमबीबीएस का स्टूडेंट है, वो अपनी डिग्री के दौरान एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर निकालना चाहे तो उसको तकरीबन 5 से 6 साल लग जाएंगे। मतलब वो अपनी डिग्री में सिर्फ एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर निकाल सकता है, लेकिन एक एआई टूल यहाँ पर तकरीबन 1 सेकंड में 20 करोड़ आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर निकाल के दे सकता है। तो अगर एक पेशेंट को हमने बचाने की जरूरत होगी तो हम किसका यूज करेंगे? हम एआई का यूज करेंगे, जो 1 सेकंड में हमें 20 करोड़ स्ट्रक्चर दे सकती है, या फिर हम उस स्टूडेंट का वेट करेंगे जिसको तकरीबन 5 से 6 साल लगेंगे एक स्ट्रक्चर को निकालने के लिए? ऑब्वियसली हम एआई का यूज करेंगे, क्योंकि एआई हमें बहुत जल्दी सोल्यूशन दे रही है। तो दुनिया किस चीजों में बिलीव करती है? दुनिया हमेशा फास्ट चीजों में बिलीव करती है, दुनिया हमेशा अपडेटेड चीजों में बिलीव करती है। कोई भी इंसान आपके लिए वेट बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में हो सकता है आप इस लाइफ में एग्जिस्ट ही ना करते हो। आने वाले टाइम जो है, आने वाला जो टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ मशीनों का इस्तेमाल होगा। आप कहीं पर भी यहाँ पर जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे। तो हमने अपने आप को टाइम के साथ अपडेट करना है। हमने इन टेक्नोलॉजीज को समझना है, हमें टेक्नोलॉजीज को अंडरस्टैंड करना है, इनको सीखना स्टार्ट करना है। एआई हम सबके लिए बहुत ही खतरनाक है। एआई ने गूगल को टक्कर दी हुई है। गूगल एक सर्च इंजन है, लेकिन सर्च इंजन की भी बात की जाए तो वो भी आपको इतनी इन्फॉर्मेशन और डेटा नहीं दे सकता जितना एआई दे सकता है। और एआई की इंटेलिजेंस को रोबोट्स में बनाकर यहाँ पर फिजिकली काम भी करवाया जाएगा। तो आने
वाला टाइम हम सब लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि आने वाला टाइम हम इंसानों का नहीं है, आने वाला टाइम मशीनों का है। एआई फ्यूचर में क्या-क्या कर सकता है। देखें, अभी जो हेल्थ केयर है, जहाँ पर अभी आपके डॉक्टर्स हैं, जहाँ पर आपके अभी मेडिकल में डॉक्टर्स यूज़ हो रहे होते हैं, जो आपको सॉल्यूशंस देते हैं, आपकी तबीयत चेक करते हैं। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर क्या होगा कि प्रोग्रामिंग हो जाएगी, रोबोट्स आ जाएँगे जो यहाँ पर आपकी सेहत का ख़्याल रखेंगे। तो एआई की आने की वजह से जो डॉक्टर्स की मेडिकल फ़ील्ड है, वो भी खतरे में है। ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पर अभी आप ड्राइवर्स यूज़ करते हैं, जहाँ पर अभी आप ये जो लोकल सर्विसेज़ यूज़ करते हैं, ड्राइवर्स होते हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा कि ऑटोमेटिक कार्स आ जाएँगी जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एआई टूल चलाएँगी, जिनमें सिर्फ़ एक बार प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत होगी और वो कार्स ऑटोमेटिकली आपको अपनी डेस्टिनी पर लेके जाएँगे। मतलब तो एआई की आने की वजह से यहाँ पर ड्राइवर्स की जॉब भी बहुत खतरे में है। सिक्योरिटी डिफेंस, ठीक है? बहुत सारे लोग अब क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए वो सिक्योरिटी गार्ड्स को रख लेते हैं, या कुछ ऐसे सिस्टम्स भी होते हैं जो अपने इदारों के लिए सिक्योरिटी जो गार्ड्स होते हैं उनको रखते हैं नौकरी पर। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वहाँ पर भी रिप्लेस होकर रोबोट्स आ जाएँगे जो वहाँ पर सिक्योरिटी करेंगे। तो ये एआई की आने की वजह से जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको भी बहुत खतरा है, उनकी जॉब्स भी जाने वाली हैं। एजुकेशन, जहाँ पर आपको अभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या होगा, यहाँ पर रोबोट्स आ जाएँगे जिनमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग की जाएगी, सारे प्रोग्राम्स उनमें जो है फेच किए जाएँगे। उसके बाद यहाँ पर जो टीचर्स बनने जा रहे हैं, उनका जॉब भी बहुत खतरे में है। तो इस बात से आप समझ रहे हो कि आने वाले टाइम में आप किस चीज़ पर काम कर रहे हो, क्या बनना चाहते हो आप? यहाँ पर तो डॉक्टर्स भी एग्ज़िस्ट नहीं करते, टीचर्स भी एग्ज़िस्ट नहीं करते, ट्रांसपोर्टेशंस भी एग्ज़िस्ट नहीं कर सकती। एंटरटेनमेंट, आजकल देखा जाए तो एंटरटेनमेंट भी एआई ही कर रहा है हम सब लोगों की। बहुत सारे लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं, अपने ब्रेन का यूज़ नहीं कर रहे। एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, हम बस एआई को कोई कमांड दे देते हैं, वो हमारी सारे होमवर्क कर देता है, स्क्रिप्ट लिख देता है, कंटेंट बना के दे देता है, हम उसका यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमें एक्स्ट्रा फास्ट सॉल्यूशन देता है। तो इससे क्या होता है कि हम अपने ब्रेन को भी यूज़ नहीं कर रहे, जिससे हम लेज़ी होते जा रहे हैं और मशीन्स हम पर कंट्रोल कर लेंगी। उसके बाद मशीन्स ही हम पर यहाँ पर हुकूमत करने वाली हैं। तो इस बात को आप समझ लो कि आपने एआई के बारे में बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ सीखना है। आने वाले टाइम में ना यहाँ पर वही लोग सर्वाइव्ड होंगे जो इनके बारे में इन्फॉर्मेशन रखते होंगे, जो इनके बारे में सब कुछ जानते होंगे। तो आने वाला टाइम हम सब लोगों के लिए बहुत टफ है। जितनी आपके पास एजुकेशन होगी एआई के बारे में, तभी आप आगे आने वाले टाइम में इसको सही से यूज़ कर पाएँगे। नहीं तो आने वाले टाइम में अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए एक खतरे की घंटी है। आपने उसके साथ-साथ ऑनलाइन फ़ील्ड्स हैं और टेक्नोलॉजी को भी समझना होगा, जिससे आप अपने आने वाले टाइम को सिक्योर कर सको। बात की जाए यहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस की, तो 1919 से लेकर 223 तक हमारे घर के खानदान के किसी खानदान के चलाने की जो बजट होती है, 1919 से देखा जाए तो सिर्फ़ 1000 काफ़ी होता था सिर्फ़ एक खानदान को चलाने के लिए। 2000 से लेके 2010 तक देखा जाए तो 5000 काफ़ी होते थे एक घर के सर्कल को चलाने के लिए। 2010 से 2020 तक देखा जाए तो महँगाई बढ़ती गई, डॉलर का रेट इंक्रीज़ होता गया क्योंकि हमारे पास ग्रोथ सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से महँगाई बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर एक घर का खर्चा 50,000 रुपए हो गया। अभी करंट सिचुएशन की बात की जाए तो अगर आपके घर में 1 लाख पर मंथ की इनकम है, तो ही आपके घर का सर्कल सही चल सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक जॉबियन हैं, तो आप इस बात को ना अच्छे से समझ रहे होंगे कि घर के सर्कल को, घर के खर्चे को चलाना कितना मुश्किल होता है किसी के लिए। तो करंट अगर आपके घर 1 लाख पर मंथ की इनकम है, तो ही आपके घर का सर्कल सही से चल सकता है। ये तो मैंने सिर्फ एवरेज इनकम की बात की है, अगर आप किसी सिटी में रहते हैं, तो आई थिंक आपको 5 से 6 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। 1 लाख रुपए तो आजकल बिजली का बिल आ रहा है सिर्फ़। एंड आने वाले टाइम में 2030 से लेकर 2040 तक देखा जाए तो जिसके घर की इनकम 5 लाख प्लस होगी, वो ही यहाँ पर सर्वाइव करेंगे। तो आपने अभी से प्लानिंग करनी है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। आपको इन सारी चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि दुनिया कहाँ पर जा रही है, हम कहाँ पर जा रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर हम मज़दूरों की या एम्प्लॉइज़ की, तो यहाँ पर एक मज़दूर यहाँ पर जितना भी कमाता है वो मंथली यहाँ पर सिर्फ़ 25,000 रुपए ही कमाता है। 25,000 पर मंथ आई थिंक बहुत ही कम है किसी घर के सर्कल को चलाने के लिए। तो अगर एक मज़दूर यहाँ पर 25,000 भी पर मंथ कमाता है तो वो 1 साल में सिर्फ़ 3 लाख रुपए कमा सकता है एंड उसको 30 लाख कमाने के लिए 10 साल लग जाएँगे। तो 10 साल आई थिंक बहुत बड़ी जो है ना टाइम की इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा टाइम है।
अगर उसकी सैलरी 35,000 पर मंथ है तो वो एक साल में यहाँ पर 4,20,000 कमा सकता है, जबकि 42 लाख कमाने के लिए उसको 10 साल लग जाएंगे। अगर उसकी सैलरी यहाँ पर 50,000 है तो 50,000 में वो यहाँ पर एक साल में सिर्फ 6 लाख रुपए कमा सकता है, जबकि वो 10 साल लग जाएंगे उसको 60 लाख की इनकम कमाने में। तो इस बात को समझ रहे हो कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारी इनकम से कहीं ज़्यादा हैं। तो हम इन सबको कैसे बीट कर सकते हैं? हम इन चीज़ों से कैसे आगे सर्वाइव कर सकते हैं? तो बेसिकली हम जहाँ पर भी एजुकेशन करते हैं, बचपन से ही अगर हमने ना जो एमबीबीएस करनी होती है तो हमें किस चीज़ की पढ़ाई कराई जाती है? हमें एमबीबीएस की पढ़ाई कराई जाती है। अगर हमने डॉक्टर बनना होता है तो हमें एमबीबीएस की पढ़ाई कराई जाती है। अगर हमने इंजीनियर बनना है तो हमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाती है। अगर हमने अकाउंटेंट बनना है तो हमें सीए की पढ़ाई कराई जाती है। सेम इट इज़, अगर हमारे पैसे के रिलेटेड सपने बहुत बड़े हैं तो क्या हमें फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है? बिल्कुल नहीं। किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हमें ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे के क्या फंडामेंटल्स है, पैसे के क्या सीक्रेट है, पैसे को दुनिया कैसे प्रोड्यूस कर रही है, लोग किस तरह से पैसा कमा रहे हैं। हमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कि आप नौकर कैसे बनेंगे, आप नौकरी कैसे लेंगे। हमें बचपन से हमारे दिमाग में यही एक चीज़ बिठाई जाती है कि आपने पढ़ लिख कर नौकरी करनी है। हमारे वालिदैन भी हमें यही कहते हैं कि आपने पढ़ लिख कर अच्छी-सी नौकरी करनी है। तो बचपन में ही हमारे दिमाग में क्या फ़ीड किया जाता है बचपन से ही कि आपने पढ़ लिख कर नौकरी करनी है, बट नौकरी हमारे फ्यूचर को कभी भी सिक्योर नहीं कर सकती। बट अगर देखा जाए पैसे के रिलेटेड आपको कोई सब्जेक्ट मिल सकता है दुनिया में, तो जी बिल्कुल मिल सकता है। द रिच डैड पुअर डैड, मैं आपको ये बुक रिकमेंड करूँगा कि आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। इसमें पैसे के रिलेटेड पूरे फंडामेंटल्स हैं। डॉक्टर रॉबर्ट डी कियोसाकी जिनकी एक पूरी सीरीज़ है द कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिन्होंने एक बुक लिखा द रिच डैड पुअर डैड, जिसमें उन्होंने एक अमीर बाप और गरीब बाप की पूरी सोच बता दी कि एक अमीर बाप कैसे काम करता है और एक गरीब बाप कैसे काम करता है। तो इस बुक को बेस्ट सेलर उन्हें अमेज़न का अवार्ड भी मिला हुआ है। इसमें आपको कंप्लीट फाइनेंशियल एजुकेशन भी मिलेगी। एंड इस बुक में डॉक्टर रॉबर्ट डी कियोसाकी ने एक मॉडल बनाया जिसका नाम था ईएसबीआई मॉडल। उसने कहा कि दुनिया में लोग 4 तरह से पैसे को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसने 4 कैटेगरीज़ बयान की जिसमें बताया गया कि दुनिया में आप इस तरह से पैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है एम्प्लॉय कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी है बिजनेस ओनर, चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है इसमें आप किस तरह से पैसे कमा सकते हो। सबसे पहली जो कैटेगरी है यू गेट अ जॉब। सबसे पहले आप या तो कोई जॉब ले लो, या तो आप गवर्नमेंट जॉब ले लो, या तो आप प्राइवेट जॉब ले लो। जहाँ पर आप जॉब ले लोगे वहाँ पर आप किसी बॉस के अंडर काम करोगे, एंड जितना आप टाइम वहाँ पर स्पेंड करोगे, जितना आप टाइम वहाँ पर काम करोगे, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट दी जाती है। मतलब जितना आप उनको टाइम देते हो उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलती है। अगर आप पार्ट टाइम काम करते हो तो आपको पार्ट टाइम के पैसे दिए जाते हैं। अगर आप फुल टाइम काम करते हो तो आपको फुल टाइम के पैसे दिए जाते हैं। अगर आप ओवर टाइम करते हो तो आपको यहाँ पर ओवर टाइम के पैसे दिए जाते हैं। मतलब जितना टाइम आप इन्वेस्ट करोगे उसके बदले आपको यहाँ पर कुछ पेमेंट दी जाती है। तो ये क्या कौन सी कैटेगरी है? ये है एम्प्लॉय कैटेगरी, कि या तो आप कोई जॉब ले लो, या तो आप कोई नौकरी कर लो, उस नौकरी से आपको थोड़ी बहुत जो है इनकम होगी, जिससे आप टाइम इन्वेस्ट करोगे जितना उस उतनी ही आपको यहाँ पर इनकम होती है। दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। अब सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में यू ओन अ जॉब, आप अपने आप के नौकर होते हो, आप अपने लिए एक खुद ही जॉब क्रिएट करते हो, नौकरी क्रिएट करते हो, यू वर्क फॉर योरसेल्फ, आप अपने आप के लिए काम करते हो। अब इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका या तो कोई जनरल स्टोर होता है, एक डॉक्टर हो गया जिसकी क्लिनिक हो गई। अब देखें एक जनरल स्टोर पर भी क्या है कि अगर आप उससे पूछोगे कि चाचा जी आप क्या करते हो, ये किस चीज़ का दुकान है आपका? तो वो कहेगा कि ये मेरा बिज़नेस है, बट दैट इज़ नॉट बिज़नेस, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। आप अगेन आपका यहाँ पर टाइम इन्वॉल्व है, जितना आप टाइम यहाँ पर इन्वॉल्व करोगे उतने ही आप यहाँ पर मनी जनरेट कर सकते हो। अगेन आपका अगर कोई छोटा-मोटा क्लिनिक भी है, अगर एक डॉक्टर है तो यहाँ पर उसको भी टाइम फ्रीडम नहीं होता। डॉक्टर भी यहाँ पर अपना टाइम इन्वॉल्व करेगा, वो क्लिनिक का शटर खोलेगा तभी उसको यहाँ पर इनकम होगी। अब ई एंड एस जो लोग होते हैं ना, एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, इन लोगों के पास टाइम फ्रीडम नहीं होता। ये कभी भी अपनी लाइफ को एन्जॉय नहीं कर सकते, ठीक है? ये कभी भी छुट्टी नहीं कर सकते, क्योंकि एम्प्लॉयी जो है वो किसी बॉस के लिए काम करते हैं, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो खुद के लिए काम करते हैं। उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता, वो कभी भी अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय नहीं कर सकते, कभी भी अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने नहीं जा सकते। तो उनके पास टाइम फ्रीडम कभी भी नहीं होता। अगर देखें एक डॉक्टर है, उसकी एक क्लिनिक भी है, अगर वो 4 दिन अपने क्लिनिक का शटर बंद करके सो जाए घर पे, तो क्या उसको इनकम आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि अगेन उसकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से वो पैसे कमा रहा है।
تو اگر ایک باس کے نیچے کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو اگر وہ آفس نہ جائے تو کیا اس کو انکم ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پر وہ ٹائم دیتا ہے جس ٹائم کے بدولت اس کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو امپلائی اور سیلف امپلائی لوگ کبھی بھی اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے، یہ ایک ریٹ ریس میں ہوتے ہیں جو بس بھاگتے بھاگتے صبح سے گھر، گھر سے آفس، آفس سے گھر، آفس سے گھر اور گھر سے آفس، بس یہی ان کی زندگی ہوتی ہے، جن کی زندگی اینڈ ہو جاتی ہے گھومتے گھومتے، کبھی بھی اپنی لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ تو تیسری کیٹیگری ہے یہاں پر بزنس کیٹیگری، یو اون اے سسٹم۔ یہاں پر آپ ایک سسٹم کریٹ کرتے ہو، یو گیو جاب اپرچونیٹیز، آپ یہاں پر لوگوں کو بہت ساری اپرچونیٹیز دیتے ہو، آپ ایک ٹیم ہائر کرتے ہو جو ٹیم آپ کے لیے یہاں پر کام کرتی ہے بزنس کیٹیگری میں۔ آپ کے پاس یہاں پر ٹائم فریڈم ہوتا ہے، آپ کے پاس یہاں پر منی فریڈم ہوتی ہے، بزنس میں آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک ایسا سسٹم کریٹ کرتے ہو، آپ ایک ایسا سورس بنا لیتے ہو جو آٹومیٹکلی آپ کے لیے کام کرتا رہتا ہے، اینڈ آپ کام کرو یا نہ کرو آپ کو انکم ہوتی رہتی ہے۔ اب بہت سارے بزنسز ایسے بھی ہوتے ہیں، لوگ فیکٹریز وغیرہ بنا لیتے ہیں جہاں پر وہ لوگوں کو لگا دیتے ہیں اور لوگ ان کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، اینڈ اس کے مالکان کو انکم ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ ایک بار انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ایک ایسا سسٹم کریٹ کرتے ہیں جہاں سے وہ لائف ٹائم کے لیے ارننگ کرتے ہیں، وہاں پر وہ لوگوں کو لگا دیتے ہیں، لوگ ان کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، اینڈ خود وہ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ۔ تو بزنس مین انسان کے یہ فنڈامنٹل ہوتے ہیں کہ وہ ایک ایسا سسٹم کریٹ کرتے ہیں جہاں پر وہ لوگوں کو لگا دیتے ہیں، لوگ ان کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، اینڈ وہ اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اینڈ جو یہاں پر آخری کیٹیگری ہے وہ ہے انویسٹر کیٹیگری، یو انویسٹ منی۔ یہاں پر آپ کسی بھی کمپنی میں یا کسی بھی کوئی بھی ایک پلاٹ لے لیتے ہو، اس کو آپ رینٹ پہ دے دیتے ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے، اینڈ آپ کو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں پر جتنے پیسے انویسٹ کرتے ہو کسی کمپنی میں یا کوئی ایسا سسٹم لیتے ہو جہاں سے آپ کو منتھلی انکم ریسیو ہوتی ہے آپ کی انویسٹمنٹ پہ، آپ کا پیسہ آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ بٹ یہاں پر جو چیز میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، دنیا کی 95% جو پاپولیشن ہے وہ ای اینڈ ایس کیٹیگری میں فال کرتی ہے، امپلائی اینڈ سیلف امپلائی کیٹیگری۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کا صرف 5% پیسہ ہی ان کو ملتا ہے، کیونکہ امپلائی اینڈ سیلف امپلائی لوگوں کے پاس جو ہے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہاں پر پیسے بہت کم ہوتے ہیں، ان کو بس جتنا وہ کام کرتے ہیں اتنا ہی ان کو پیسہ ملتا ہے۔ بزنس اینڈ انویسٹر کیٹیگری میں دنیا کی صرف 5% پاپولیشن ہے اور دنیا کا 95% پیسہ بزنس اینڈ انویسٹر کیٹیگری میں ہے۔ اب امپلائی اور سیلف امپلائڈ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی پوری باڈی کا استعمال کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، جبکہ بزنس اور انویسٹمنٹ یہاں پر کیا کر برین کا استعمال کرتے ہیں، اپنے ایسے کا استعمال کر وہ ایک ایسا سسٹم کریٹ کرتے ہیں جہاں سے ان کو بہت سارا پیسہ ملتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ایسا انسان ہے جس نے بہت پیسہ کمایا ہے لیکن وہ نوکری کرتا ہے؟ اوبویسلی نہیں، یہاں پر وہی لوگ امیر ہوتے ہیں جو کوئی نہ کوئی بزنس کرتے ہیں۔ دنیا میں آپ دو طرح سے پیسے جنریٹ کر سکتے ہو، یا تو آپ جاب کر لو یا تو آپ بزنس کر لو، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بہت سارے لوگوں کے جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جاب کا آخر فل فارم کیا ہے۔ جاب کا فل فارم ہوتا ہے جوائن ادرس بزنس، یا تو آپ کسی اور کے خواب پورے کرنے کے لیے اس کی بزنس ٹیم جوائن کرو، اس کے لیے کام کرو، کسی باس کے انڈر کام کرو اور وہاں سے وہ آپ کو چھوٹی موٹی رقم دے گا اور اس سے آپ اپنے گھر کا ایکسپینسز بھی صحیح سے نہیں چلا سکتے۔ جاب میں آپ کے پاس لمیٹڈ منی ہوتی ہے، آپ کے پاس پیسہ بہت ہی لمیٹڈ ہوتا ہے، آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں کما سکتے آپ جاب میں، آپ کے پاس جاب میں کوئی ٹائم فریڈم نہیں ہوتا، آپ اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ آپ اگر 4-5 دن اپنے کام پر نہیں جائیں گے تو وہ آپ کا جو باس ہے آپ کو کک آؤٹ کر دے گا، باہر نکال دے گا، وہ آپ کی جگہ کسی اور کو رکھ لے گا۔ آپ کے پاس جاب میں فائنینشیل سیکورٹی نہیں ہوتی، خدا نخواستہ کل آپ کو کچھ ہو جائے تو ایسی کیا جو ہے کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی جو فیملی ہے ان کا فیوچر سیکیور ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو بھی جاتا ہے تو آپ کی پوری فیملی کی لائف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ ان کا ایک واحد ذریعہ ہو جو ان کا پیٹ پال سکتا ہے۔ تو جاب میں آپ کے پاس فائنینشیل سیکورٹی نہیں ہوتی کہ خدا نخواستہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو آپ کی فیملی پیچھے کیا کرے گی، اینڈ آپ کی جاب میں ہیلتھ ڈسٹرائڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کی صحت کافی خراب ہو جاتی ہے جاب میں، کیونکہ ڈیلی بیس پہ آپ ایک ریٹ ریس میں ہوتے ہیں، آپ نے صبح کو آفس جانا ہوتا ہے، پھر 5 بجے واپس آنا ہوتا ہے، پھر صبح 8 بجے آفس جانا ہوتا ہے۔ بٹ بزنس کی بات کی جائے تو بزنس میں آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم فریڈم بہت زیادہ ہوتا ہے، بزنس میں آپ کے پاس ایک ایسے سورس ہوتے ہیں کہ جہاں سے آپ کو ان لمیٹڈ پیسے آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس بزنس میں ٹائم بہت وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائف کو انجوائے کر سکتے ہو، آپ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہو۔ بزنس میں آپ کے پاس فائنینشیل سیکورٹی ہوتی ہے، اگر آپ کو کچھ ہو بھی جاتا ہے تو آپ کے ایسے ایسیٹس ہوتے ہیں، آپ کے ایسے سسٹمز ہوتے ہیں جو آٹومیٹکلی کام کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ آپ کی فیملی کا فیوچر سیکیور ہوتا ہے۔ اگین یہاں پر آپ کی ہیلتھ ڈسٹروائے ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اپنی ہیلتھ کو
वापस उसी लेवल पर लेके आते हो। तो बिजनेसमैन इंसान का सीक्रेट क्या होता है, या तो वो एक सेल टीम क्रिएट करता है, एक बिजनेस टीम बनाता है, या अपना एक नेटवर्क बनाता है जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमाता है। अब देखिए फेसबुक, मार्क ज़करबर्ग ने क्या किया, उसने एक सिस्टम बना दिया, उसने फेसबुक बना दिया जहाँ पर उसने लोगों को लगा दिया, वो लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। अब भी मार्क ज़करबर्ग अपने काम पर एक्टिव है, तब भी उसको इनकम आएगी, अगर वो काम नहीं करेगा तो भी उसको इनकम आएगी, क्योंकि उसने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया, उसको उसने मार्केट में दे दिया। अब मार्केट में वो यूज़ होता जा रहा है एंड लोग और मार्क ज़करबर्ग को पैसे जा रहे हैं। बेशक वो अपनी ऑफ़िस जाए या ना जाए, उसके पास पैसे ज़रूर जाएँगे। फेसबुक के पास क्या है, एक नेटवर्क है, 2.96 बिलियन का नेटवर्क है। अगर मार्क ज़करबर्ग डेली बेस पे सिर्फ एक इंसान से ₹1 भी चार्ज करे, तो वो एक दिन में यहाँ पर 2.96 बिलियंस कमा रहा है। केएफसी के पास क्या है, उसके पास ब्रांचेस हैं, मतलब उसके पास भी नेटवर्क है, पूरी दुनिया में उसके 10,000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। क्या इस 10,000 की ब्रांचेस में क्या केएफसी के मालिकान खुद बैठे हुए होते हैं? नहीं, उन्होंने क्या किया है, हर मुल्क में, हर कंट्री में, हर सिटी में अपनी ब्रांच खोली हुई है, जहाँ पर उन्होंने लोगों को लगाया हुआ है और लोग उनके लिए काम कर रहे होते हैं एंड केएफसी के मालिकान को पैसे जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बना दिया एंड उस सिस्टम में लोगों को लगा दिया एंड लोग उनके लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं एंड केएफसी के मालिक को पैसे जा रहे हैं। बात कीजिए हमारे पाकिस्तान की सिम, टेलीकम्युनिकेशन सिम जैज़ की, तो जैज़ के पास क्या है, उसके पास नेटवर्क है, 75 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए कि बिज़नेसमैन लोग पैसे किस तरह से कमाते हैं। उनके पास एक नेटवर्क होता है, उनके पास एक टीम होती है, जो टीम उनके लिए काम कर रही होती है। उनके पास एक ऐसा सिस्टम होता है, वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं, जो सिस्टम उनके लिए काम कर रहा होता है। अब जैज़ के पास क्या है, उनके पास नेटवर्क है, उनके पास ऑडियंस है, उनके पास 75 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मतलब 7.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास। अब देखिए 7.5 करोड़ उनके पास सब्सक्राइबर हैं, तो क्या जेज़ कंपनी का मालिक वो खुद लोगों के पास जाता है कि हाँ भाई मुझे पैसे दो? नहीं ना, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिसके बाद उन्होंने अपने सिस्टम का एक नेटवर्क बनाया, लोगों में जाल बिछाया और लोगों को वो सिम्स दे दी। अब आपकी अगर सिम खराब भी होती है या आपकी कॉल नहीं जा रही होती किसी को या कोई भी एरर आता है, तो आप सबसे पहले गाली किसको देते हो? गाली आप उसको देते हो जो बंदा वहाँ पर काम कर रहा होता है। आपने कभी भी जैज़ के मालिक को गाली नहीं दी, या कभी आपको ये हुआ है कि जैज़ कंपनी के मालिक ने आपकी कॉल उठाई, वो आपसे बात करे? नहीं, क्योंकि वो बिज़नेसमैन है, उसने एक सिस्टम बना लिया अपने लिए, वहाँ पर लोगों को लगा लिया। अब आपकी गालियाँ कौन सुनेंगे? लोग सुनेंगे, लेकिन आपका पैसा किसके पास जाएगा? कंपनी के पास जाएगा, मालिक के पास जाएगा। अब इसके पास 7.5 करोड़ का नेटवर्क है, अगर एक-एक सिम पर जैज़ का ओनर सिर्फ़ ₹1 भी चार्ज करे एक इंसान से, तो वो 1 दिन में कितना कमा रहा है, यहाँ पर 7.5 करोड़ रुपए सिर्फ़ 1 दिन का कमा रहा है जैज़ का ओनर। अगर वो 7.5 करोड़ लोगों से सिर्फ़ ₹2 1 दिन का चार्ज करे, तो वो यहाँ पर 15 करोड़ रुपए 1 दिन में कमा रहा है। अब ₹2 आपके लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन जिसके पास जा रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, उसके पास बहुत बड़ी अमाउंट जा रही है। सिर्फ़ आपसे ₹2 नहीं कट रहे, आपके साथ और भी यहाँ पर 7.5 करोड़ लोग हैं, जिनसे 2-2 रुपए कट हो रहे हैं। आप रिचार्ज करवाते हैं तो कितने पैसे आपके जो हैं वो कट जाते हैं, 3 से 4 रुपए कट जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के कटते होंगे, तो टोटल कंपनी के पास कितना जा रहा है एक-एक दिन में? अगर जेज़ का ओनर यहाँ पर 1 दिन में सिर्फ़ ₹3 भी एक इंसान से चार्ज करता है, तो वो दिन में कितना कमा रहा है? 22.5 करोड़ रुपए। तो 22.5 करोड़ रुपए एक एम्प्लॉयी या एक मज़दूर को कमाने के लिए कम से कम 50 से 60 साल लग जाएँगे, लेकिन एक बिज़नेस का मालिक एक-एक दिन में कमा रहा है। सो दैट इज़ द सीक्रेट कि वो अपने नेटवर्क से कमाते हैं, वो अपने सिस्टम से कमाते हैं, ऑडियंस से कमाते हैं, लोगों से कमाते हैं। अब एक बिज़नेसमैन इंसान क्या करता है, वो टाइम लिवरेज फ़ॉर्मूले का यूज़ करता है। अब ये क्या चीज़ है, अगर ये आपको समझ में आ गई तो पूरा बिज़नेस आपको समझ में आ जाएगा। अब देखें, अगर एक नॉर्मल एम्प्लॉयी की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा एक जो इंसान नौकरी करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा या तो 8 घंटे काम कर सकता है, 12 घंटे काम कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ओवरटाइम भी कर ले तो वो 14 घंटे काम कर सकता है, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर वही इंसान अपने नीचे एक टीम बना ले, 10 लोगों को हायर कर ले और सेम वही काम 10 लोगों से करवाए, तो वो 24 घंटे में कितना काम कर रहा है। अगर एक इंसान अपने नीचे 10 लोगों की टीम बनाता है और उन 10 लोगों से 8-8 घंटे काम करवाता है, तो वो 24 घंटे में 80 घंटे काम करता है और उसको जो इनकम है कितनी मिलेगी? 80 घंटे की मिलेगी। अगर वही इंसान अपने नीचे 100 लोगों की टीम बनाता है और 100 लोगों से 8-8 घंटे काम करवाता है, तो उसको कितनी इनकम होगी यहाँ पर?
24 घंटे में वो 800 घंटे काम कर रहा है और उसको 800 घंटे की पेमेंट मिलेगी। अगर वही इंसान अपने नीचे 1000 लोगों का नेटवर्क बनाता है और 1000 लोगों से 8-8 घंटे काम करवाता है, तो वो 24 घंटे में 8000 घंटे काम करता है और उसको जो इनकम मिलेगी वो 8000 घंटे की मिलेगी। तो ये एक सीक्रेट होता है कि एक बिज़नेसमैन इंसान अपने साथ लोगों को हायर करता है, अपना बिज़नेस बिल्ड करता है, जिनसे वो बहुत कमा रहा होता है, एंड एक एम्प्लॉयी जो होता है वो सिर्फ़ 8 घंटे की इनकम ले रहा होता है। सो दैट इज़ द सीक्रेट के बिज़नेसमैन लोग इतना ज़्यादा कमाते हैं। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज़ वन्स अ बिगिनर। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो आपने ये नहीं सोचना कि हम कैसे बिज़नेसेस बनाएँगे, आपको हर एक चीज़ यहाँ पर कंप्लीटली एजुकेट की जाएगी। ये 3 दिन की जो ट्रेनिंग सीरीज़ है, आपको भरपूर एजुकेट किया जाएगा कि कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक बिज़नेस बना सकते हैं एंड उसको बड़े लेवल पर ले जाकर अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो कोई भी काम हो, हर चीज़ स्टार्ट में कोई भी माहिर नहीं होता, उसको सीखने समझने के लिए टाइम लगता है एंड उसके बाद आप भी वो चीज़ कर सकते हो, वो काम कर सकते हो। बस आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए, वो जुस्तजू होनी चाहिए, वो मेहनत होनी चाहिए। तो आज के इस सेशन से एंड में मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आपने ये करना है कि आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है कि आप आने वाले 10 साल में खुद को कहाँ पर देखना चाहते हो? आप अपनी लाइफ में क्या-क्या इंप्रूवमेंट्स करना चाहते हो? आप अपनी लाइफ में कौन से गोल्स अचीव करना चाहते हो? सबसे पहले मैटर करता है टारगेट। अगर आपके पास टारगेट नहीं होगा तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, आपने अपने 10 ड्रीम्स बनाने हैं, अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है एंड उसके साथ-साथ आपने अपना प्रोफेशन भी सेलेक्ट करना है कि आप क्या करना चाहते हो? आप बिज़नेस करना चाहते हो या आप जॉब करना चाहते हो? आपने अपनी ड्रीम लिस्ट भी बनानी है एंड उसके सामने आपने क्या करना है, एक प्रोफेशन भी चूज़ करना है। आप बिज़नेस करना चाहते हो या आप जॉब करना चाहते हो? तो कल वाला जो सेशन होगा इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से बिज़नेस कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी बड़े सिस्टम्स के, बिना किसी बड़ी मेहनत के। तो कल वाला जो सेशन होगा आप सब लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें आपको कंप्लीट बिज़नेस करना सिखाया जाएगा। तो आई होप कि आज के सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जो भी आपने आज कुछ नया सीखा है, तो आपने अपने अपलाइन को फीडबैक ज़रूर देनी है कि आज के सेशन से आपने क्या सीखा है। तो फिर मिलेंगे कल वाले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।